Good morning, everyone. In the previous lecture, we discussed the definition of orthogonal matrix. Now, in this lecture, we have to prove some theorems based on orthogonal matrix. First theorem is if A is symmetric and P is orthogonal, then P inverse AP is symmetric. If A is symmetric and P is orthogonal, then show that P inverse AP is symmetric. It is given that A is symmetric. So by definition of symmetric, A transpose is equal to A. It is also given that P is orthogonal matrix. So by definition of orthogonal, P transpose is equal to P transpose P is equal to identity. And if we pre-multiply this equation by P inverse, then it comes out to be P inverse is equal to P transpose. Now we have to prove that P inverse AP is symmetric. For proving P inverse AP to be symmetric, we have to prove that P inverse AP का whole transpose is equal to P inverse AP. So we take P inverse AP का transpose. It comes out to be P transpose A P whole transpose because P inverse is equal to P transpose. Now we know AB transpose is equal to B transpose A transpose. So for this it comes out to be P transpose A transpose P transpose to the transpose, and we know P transpose to the transpose is equal to P. So it comes out to be P transpose A transpose and P. It is also given that A is symmetric, so A transpose is equal to A. Put the value of A transpose is equal to A here. So it comes out to be P transpose AP is equal to P inverse AP because P transpose is equal to P inverse. Now, so we prove that P inverse AP is transpose is equal to P inverse AP. So P inverse AP is symmetric. जब हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसके लिए हम ये प्रूव करते हैं, जिसको भी हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है, अगर हम उसको ये प्रूव कर दें कि उसका होल ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक प्रूव हो जाता है. तो यहाँ भी हमें ये प्रूव करना था कि P इनवर्स AP क्या है हमारा सिमेट्रिक. तो P इनवर्स AP का हमने होल ट्रांसपोज लिया और उसको प्रूव कर दिया कि वो किसके इक्वल है हमारा P इनवर्स AP के. सो P inverse AP is symmetric. Next theorem is prove that if AB is equal to BA and C is an orthogonal matrix, then the multiplication of C inverse AC and C inverse BC is commutative. It is given that AB is equal to BA and it is also given that C is an orthogonal matrix. We have to prove that C inverse AC and C inverse BC is commutative, and we know the definition of commutative. If A and B are commutative, then AB is equal to BA. So हमें प्रूव करना है C inverse AC and C inverse BC are commutative. So हम ये प्रूव करेंगे इसमें कि C inverse AC into C inverse BC is equal to C inverse BC into C inverse AC. We have to prove that C inverse AC into C inverse BC is equal to C transpose BC is equal to C transpose AC. AB is equal to BA given, C is orthogonal. Definition हमने अप्लाई की, C transpose C is equal to C transpose is equal to identity. Commutative के लिए हमें ये पता है, हमें ये प्रूव करना है कि C inverse C transpose AC in this C inverse is equal to C transpose because C is an orthogonal matrix. C transpose is equal to C inverse because C क्या है हमारे पास एक C is an orthogonal matrix. C is an orthogonal matrix. So C ट्रांसपोज AC C ट्रांसपोज BC इज इक्वल टू, इसको हमने ओपन किया, C ट्रांसपोज A C ट्रांसपोज BC. C ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी है, सो C ट्रांसपोज A आइडेंटिटी BC, C ट्रांसपोज ABC. अब हमने निकाला C इनवर्स BC C इनवर्स AC, C इनवर्स B CC ट्रांसपोज को इकट्ठा रखा AC. दैट कम्स आउट टू बी C ट्रांसपोज B CC ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी AC. B इंटू आइडेंटिटी इज B, सो C ट्रांसपोज BAC
and it is given that BA is equal to AB, so C ट्रांसपोज ABC। अब हमने यहाँ ये प्रूव कर दिया कि जो C ट्रांसपोज AC, C ट्रांसपोज BC इज इक्वल टू C ट्रांसपोज BC, C ट्रांसपोज AC, हैंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ C ट्रांसपोज AC एंड C ट्रांसपोज BC इज कॉम्यूटेटिव। तो कभी भी हमें अगर कॉम्यूटेटिव प्रूव करना होता है कि किसी का भी कोई ए और बी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हमें ये प्रूव करना है कि ए और बी हमारा कॉम्यूटेटिव है तो उसके लिए हमें ये प्रूव करना होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसमें हमें प्रूव करना था कि C ट्रांसपोज AC एंड C ट्रांसपोज BC आर कॉम्यूटेटिव। तो हम ये प्रूव कर दें अगर कि C ट्रांसपोज AC इंटू C ट्रांसपोज BC इज इक्वल टू C ट्रांसपोज BC इंटू C ट्रांसपोज AC, तो हमारा ये कॉम्यूटेटिव प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए हमने यही किया, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये जो दो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है, ये जो C ट्रांसपोज AC, C ट्रांसपोज BC, ये क्या है हमारा कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट इज prove that the matrix A is of order 1 is orthogonal if and only if A is equal to plus minus 1। देखिए ये जो है, जो हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर हमें 1 गिवन है और हमें ये भी बताया गया है कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल। तो यहाँ हमने डेफिनेशन ऑर्थोगोनल की अप्लाई कर दी कि ए ट्रांसपोज हमारा आइडेंटिटी होगा। हमने डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दिया दोनों तरफ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी ट्रांसपोज, इसको हमने सेपरेट किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो हमने ये दोनों वैल्यूज़, ये दोनों रिजल्ट हमने यहाँ सब्सटीट्यूट किया है। ए ट्रांसपोज की जगह ए आ गया, ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ ओपन कर दिया, ए का डिटर्मिनेंट, ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट हमारा 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ए की वैल्यू हमें ये दी हुई है ए, तो सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 1। नेक्स्ट है, अगर ए और बी आपको n रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस गिवन है तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और बी ए बी क्या हो हमारे पास ऑर्थोगोनल। देखिए ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए और ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज और ए, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगा। बी हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो बाय डेफिनेशन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और बी ए क्या हो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ए बी को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमने ए बी के साथ ए बी के ट्रांसपोज को ऑपरेट किया। सो ए बी एंड हेयर ट्रांसपोज खुल जाएगा हमारा, यहाँ आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए आइडेंटिटी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए बी और ए बी का ट्रांसपोज जो है हमारे पास वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसी तरह जब हमने ए बी का ट्रांसपोज और ए बी निकाला तो वो भी हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। इसका मतलब देखिए हमने ये प्रूव कर दिया, यहाँ पे हमें प्रूव करना था कि जो ए बी है हमारे पास वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ए बी को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमने ये प्रूव कर दिया कि ए बी और जो ए बी का ट्रांसपोज है वो हमारा आइडेंटिटी आ रहा है, और जब हमने ए बी के ट्रांसपोज को ए बी के साथ ऑपरेट किया तो भी हमारा क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। इसका मतलब ए बी जो है हमारे पास वो क्या बन गया, ऑर्थोगोनल। अब हमें ये प्रूव करना है कि बी ए भी हमारा ऑर्थोगोनल है, तो उसको प्रूव करने के लिए आप ये प्रूव कर दो कि जो बी ए और जो बी ए का जो ट्रांसपोज है वो आपका आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, इज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज इनटू बी ए। यहाँ से आप ये कह सकते हो कि बी ए आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल हमें ए और बी दे रखे हैं, उसका हमने रिजल्ट यूज़ किया बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हमें प्रूव करना है ए बी भी हमारे पास क्या हो, ऑर्थोगोनल। तो हमने ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए हमने डेफिनेशन ही अप्लाई कर दी, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब ए बी क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल। सेम इसी तरह अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो बी ए और बी ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी आ जाए इज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज बी ए, तो यहाँ से बी ए भी क्या बन जाएगा हमारा, ऑर्थोगोनल।